اور ہمت نال بہنا ہے تے توجہ نال گل سننی ہے. میں پیش کر رہا ہوں تہاڈے سامنے جناب رانا بشارت علی خان صاحب. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میں بچپن سے یہ سیاست کھیلی ہے. مجھے خیال ہے کہ 92 میں شروع ہوا. سب سے پہلے میں آج آپ کو اپنی زندگی میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں. میری 78 کی پیدائش ہے. تو 92 میں میری کیا عمر ہونی ہے؟ 14 سال. میں اپنے گاؤں سے شہر کی طرف آ رہا تھا موٹر سائیکل پہ. تو میرے آگے ایک بس جا رہی تھی. ہمارے بڑی مشہور ہے ایم عنایت اور منٹھار بس ہے, ہمارے علاقے میں چلتی ہیں. تو میرے سامنے ایک بچے کو ایکسیڈنٹ کر کے اس کو مار کے بھاگ گئی. رات کے 6-7 بجے کا ٹائم تھا اور رمضان شریف تھے. میں اکیلا تھا اور میری عمر 14 سال سے 15 سال ہوگی. میں بھاگا ہوں موٹر سائیکل پہ میں, اور آگے جا کے میں نے موٹر سائیکل جیسے سڑک بلاک کرتی ہے موٹر سائیکل بھاگی کے آپ بھاگے اور میں نے وہ بس بلاک کر لی. اور اس بس میں نے اسے چابی اٹھا کے وہ ساتھ درخت وغیرہ ہوتے ہیں جنگل وغیرہ اس میں پھینک دی. ہاں, اس نے مجھے مارا. اور اس سے پہلے وہ لڑائی اور زیادہ ہوتی, اس کے بس کے لوگ آگے بھاگے. انہوں نے کہا کہ آپ نے صحیح کیا. اتنی دیر میں پولیس آئی اور یہ ہوا وہ ہوا. 1.5-2 گھنٹے بعد خیر اس کے بعد اس بچے کو انہوں نے 10-12 لاکھ روپے بھی دے دی اس دور میں, اور وہ مقدمہ ختم ہو گیا. میں سوچتا ہوں اگر اس رات میں اس چیز سے ڈر جاتا کہ میری عمر چھوٹی ہے اور میرے اپروچ چھوٹی ہے یا میرے میں یہ ہمت نہ ہوتی تو شاید اس بچے کے خاندان کو انصاف نہ ملتا. میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے, میں نے زندگی میں کبھی بھی لکھ کے اسپیچ نہیں کی آج تک. میں نے کبھی بھی یہ سوائے پرسوں تنویر صاحب کی مہربانی میں نے لندن میں تقریر کرنی تھی, وہ انگلش میں تھی کیونکہ وہاں پہ 1.5 لاکھ گورا تھا. تو وہ زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ میرے خیال میں نے لکھ کے اسپیچ کی تھی لندن میں پرسوں سیچرڈے والے مہربانی آپ کی. لیکن میں نے کبھی تقریر سوچ کے نہیں کی, لیکن میں ہمیشہ یہ اپنی طرف سے ضرور کوشش کرتا ہوں کہ جو تقریریں ہو چکی ہیں آپ معزز ساتھیوں نے کی ہیں, بڑی زبردست تقریریں کی ہیں, ان میں جو ایسی چیزیں ہیں جو بہتر کی جا سکتی تھی, جن کو اور واضح طور پہ پیش کیا جا سکتا تھا یا جن کی کریکشن کی جا سکتی تھی, ان چیزوں کا میں جواب ضرور دوں. میں اپنے کچھ ساتھیوں سے اختلاف کرتا ہوں, جیسے مظہر بھائی نے کہا, مجھ سے پہلے باقی ساتھیوں نے کہا کہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ایجوکیشن ہمیں قوم بنا سکتی ہے, انصاف ہمیں قوم بنا سکتی نہیں. نہ ہمیں انصاف دنیا کی ہسٹری بتاتی ہے کہ کبھی ایجوکیشن نے ترقی نہیں کی. اگر ایجوکیشن ترقی کرتا تو سری لنکا میں 100% ایجوکیشن ریٹ ہے, وہاں 40 سال خانہ جنگی رہی ہے. برما میں 100% ایجوکیشن ریٹ ہے, دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا قتل وہاں پہ کیا گیا ہے. بوسنیا میں 98% ایجوکیشن ریٹ ہے, سب سے زیادہ مسلمانوں کا خاتمہ وہاں پہ کیا گیا ہے. تو اسی طرح اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, جب سکھوں نے بادشاہی مسجد میں اپنے گھوڑے باندھے تھے, مسجد کے اندر بیٹھ کے مجرے دیکھتے تھے, اس وقت مسلمانوں کا ایجوکیشن ریٹ 60% تھا, 70% تھا. لیکن اگر تھوڑا سا نیچے آ جائے 1947 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ہمیں ایک آزاد ملک چاہیے, ایک مسلمان ملک چاہیے, تو اس وقت مسلمانوں کی ایجوکیشن ریٹ صرف 21% تھی. 21% مسلمان لکھنا پڑھنا جانتے تھے, جن کو صرف اپنے نام کی پہچان تھی, اپنے نام انگوٹھے کی بجائے اپنا نام لکھ سکتے تھے. لیکن ان 26% نے قائد اعظم کی ایک آواز پر کہا کہ واقعی ہمیں الگ ملک چاہیے, اور وہ ہم 26% ایجوکیشن ریٹ پہ ہم نے ایک الگ مسلمان کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایجوکیشن کسی اس مقام پہ صرف اور صرف ایجوکیشن نہیں لے کے جا سکتی. ہمیں شعور چاہیے, ہمیں عقل کے ساتھ وہ شعور چاہیے جو شعور ہمیں بتاتا ہے کہ دوسرے دوست کی, دوسرے انسان کی عزت کیا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ قومیں بنتی کیسے ہیں یا قومیں اجڑتی کیسے ہیں؟ پاکستان کیا ہے؟ کیا پاکستان مینار پاکستان کا نام ہے؟ کیا پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مینار کا نام ہے؟ یا پاکستان لاہور اسلام آباد کا نام ہے؟ نہیں. پاکستان ہے کس چیز کا نام؟ کبھی آپ سوچیں. جب آپ اس منزل کو پہنچ جائیں گے کہ پاکستان ہے کیا, پاکستان آپ ہیں,
पाकिस्तान मैं हूं, पाकिस्तान मेरे आने वाला बच्चा है, पाकिस्तान आप सब में पाकिस्तानी बैठे हैं, लेकिन क्या आप इंडिविजुअल पाकिस्तान, एक पाकिस्तान से दूसरे पाकिस्तान की इज्जत महफूज है इसी ब्रिस्टल में? नहीं। आज क्या अगर हम पाकिस्तान है, अगर मैं पाकिस्तान हूं, क्या मैं अपने साथी को उस इज्जत से देखता हूं जिस इज्जत से मुझे धरती मां को देखना चाहिए? अगर मेरा बिलीव है कि मैं भी पाकिस्तानी हूं और आप भी पाकिस्तानी हैं, क्या मैं चौधरी सजाद को वो इज्जत देता हूं जो एक पाकिस्तानी होने के नाते से पाकिस्तानी को देनी पड़ती? हम नहीं देते। हम एक दूसरे का महफिल में बैठ के तमाशा देखते हैं, हम एक दूसरे की इज्जतों को उछालते हैं। जब हम एक दूसरे को उछालेंगे, यहाँ पे कुछ भाई मैं उनसे जब भी मिलता हूँ, खुदाए वहाद की कसम है, जब भी मिलता हूँ उनसे मुझे नेगेटिव वेव आती है। वो हमेशा मुझे एज अ मुस्लिम लीग की होने की वजह से ताना मार जाते हैं, लेकिन मैं मुस्लिम लीग की नहीं हूँ, मेरे अंदर भी मुस्लिम लीग नहीं है, मैं एक पाकिस्तानी हूँ। अगर मैं सड़कों पर फलस्तीन के लिए निकलता हूँ तो मैं सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए निकलता हूँ। हर वो शख्स जो ये सोचता है कि हम तस्वीरों के लिए निकलते हैं, हम मीडिया के लिए निकलते हैं, हम न्यूज के लिए निकलते हैं, रब्बे कायनात की कसम उन्हें अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। मुझे अपनी जात के लिए ना किसी नाम की जरूरत है। मैं अपने दोस्तों, आप सब लोग बैठे हैं, मैं यहाँ पे वाज़ेह क्लियर करना चाहता हूँ, जब 2002 में मैं पाकिस्तान छोड़ के आया था, उस वक्त अल्लाह की पाक की कसम पूरे पाकिस्तान में राना बिशारत का एक नाम था। ना नाम की खातर, ना फेम की खातर, चाहे इसी ब्रिस्टल शहर में कार्टूनों की खातर लंदन जाना पड़े, मैं अपने साथियों से लड़ पड़ता हूँ कि हमें एजिटेशन करना चाहिए। चाहे फेसबुक का मुकाम हो, हमें लंदन में जाना पड़ता है, मैं अपने साथियों से लड़ पड़ता हूँ। हमें अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। किसी भी जगह का नाम पाकिस्तान नहीं है। इस कुर्सी को आप पाकिस्तान कह दें, इसमें ना शऊर है, ना अकल है, ना दिमाग है, ना तमीज है। आप और मैं पाकिस्तान है। जिस दिन मेरी और आपके हाथों से एक दूसरे की इज्जतें बच जाएंगी, उस दिन रब्बे कायनात की कसम दुनिया की कोई ताकत हमें दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम बनने से नहीं पीछे हटा सकती। लेकिन हम नहीं कामयाब हो सकते, और जब तक हम कामयाब नहीं हो सकते, जब तक इस बात को समझ ना लें कि कौमें इंसानों से बनती हैं, इंसान कौमों से नहीं बनते। मैं आपसे आखिर में गुजारिश करूंगा कि अक्सर ये बात सुनने में आती है, अक्सर ये बात देखने में आती है कि यार हम बहुत कम लोग हैं, कैसे ये तरक्की हो सकती है, हम कैसे बदल सकते हैं? आप बदल सकते हैं। इस ब्रिस्टल की हिस्ट्री में आपने देखा है कि हम 4 लोग निकल रहे थे फलस्तीन के लिए, सिर्फ 3 लोग भी मैं कहूँगा, सिर्फ यख्तर भाई, तनवीर, करामत और आहिस्ता आहिस्ता काफिला बना। इसी ब्रिस्टल शहर में 2.5 लाख लीफलेट तकसीम हुआ फलस्तीन में। इसी ब्रिस्टल शहर की फलस्तीन की कैंपेन को यूरोप और यूके की सबसे बड़ी कैंपेन कहा गया है। अगर हम 3-1 लोग निकल के रास्ते बना सकते हैं तो हम सब कहीं ना कहीं तब्दीली ला सकते हैं। हमें एक दूसरे को पॉजिटिव होकर देखना पड़ेगा। किसी के नई गाड़ी को शो ऑफ की बजाय उसके लिए दुआ मांगनी पड़ेगी कि अल्लाह इसे और तरक्की दे। किसी के नए घर को, किसी की नई दुकान को देख के दुआ मांगनी पड़ेगी, या अल्लाह मेरे भाई ने तरक्की की है, मुझे भी तरक्की दे। जिस दिन हम इस डगर पे चल पड़े, दुनिया की कोई ताकत हमें पीछे नहीं कर सकती। हमें एक दूसरों की इज्जतों के मुहाफिज बन जाए। रब्बे कायनात कुरान शरीफ में वाज़ेह फरमाते हैं, मैं माजरत चाहता हूँ, शायद हदीस है या आयत है, उलमा कराम बैठे हैं, वहां पे वाज़ेह फरमाते हैं अल्लाह ताला कि तुम अपने किसी साथी की वहां पे जलालत करो जहां उसे इज्जत की जरूरत हो, अल्लाह तुम्हें वहां पे जलील करेगा जहां तुम्हें अल्लाह की जरूरत है। तो हमें अपनी जुबान से, अपने दिल से एक दूसरे को महफूज कर लें, हम कामयाब हो जाएंगे। जिस दिन हम ब्रिस्टल में ये चीज ले आएंगे, ये पूरे के पूरे टेबल भर जाएंगे। क्यों ऐसा होता है कि हम लंदन जाते हैं, हजारों लोगों का मजमा होता है, न्यूपोर्ट जाते हैं, ब्रिस्टल, कार्डिफ जाते हैं, स्विंडन जाते हैं, मैनचेस्टर जाते हैं, पाकिस्तानी लोग हमें सुनने के लिए आते हैं, हमारी बात के लिए आते हैं। लेकिन क्यों ब्रिस्टल में हम टेक्स्ट कर करके थक जाते हैं, फेसबुक के मैसेज कर कर छोड़ जाते हैं। इन्हीं मस्जिदों में, जिस मस्जिद में जुमे के दिन कम से कम 1500 से 1600 लोग होते हैं, रब्बे कायनात की कसम लंदन जाने के लिए, फलस्तीन जाने के लिए, उस पूरी मस्जिद में से एक बंदा भी हमारे साथ नहीं जाता। आप मार्च की बात करते हैं, 6000 बंदा था उस मार्च में। यहाँ की लोकल पुलिस बताती है कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा मार्च था फलस्तीन के लिए, किसी भी कॉज के लिए ब्रिस्टल का सबसे बड़ा मार्च था।
आप खुद अपना एहतसाब करें कि कितने लोग एज अ पाकिस्तानी वहां पे थे, कितने लोग एज अ मुसलमान वहां पे थे। हम फिर बात उठा देते हैं कि ये अंग्रेज, ये काला, हमें जूतियां साफ करते थे। नहीं, जब तक हमें अपने एटीट्यूड नहीं बदलने, जब तक हमें राह रास्त पे नहीं आना पड़ता है, जब तक हमें रब्बे कायनात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे भी नहीं चलते, हम कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने वाज़िह कुरान शरीफ में फरमा दिया कि तुम्हारे लिए दो रास्ते हैं, या शयातीन या हुज़्बुल्लाह या हुज़्बे शातीन। या तुम शातीनों के दोस्त हो या हिज़्बुल्लाह के, अल्लाह ताला के दोस्त हो। अगर अल्लाह के दोस्त रहोगे दुनिया में भी तरक्की पाओगे, आखिरत में भी तरक्की पाओगे। अगर शातीन के दोस्त रहेंगे तो हम आखिरत में भी गुमराह रहेंगे, हम दुनिया में भी धुतकारते जाएंगे। तो सॉरी अगर मैंने किसी इंडिविजुअल की या किसी की तरफ मैंने माजरत की होगी, लेकिन बात यह है कि हमें एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना चाहिए। और यही पाकिस्तान है। मैं और आप पाकिस्तान है। आफ्ताब भाई आगे से पहले कि मुझे रोके, मैं आखिर में एक बड़ा आपसे माजरत के साथ एक बात करूंगा कि हमें जिंदगी में अल्लाह ताला खुद चुनते हैं हमें किस रास्ते पे जाना। अक्सर दोस्त कहते हैं कि मुझे नमाज के लिए टाइम नहीं मिला, अक्सर दोस्त कहते हैं कि यार मार्च में मैं नहीं आ सकता, अक्सर दोस्त सुबह कहेंगे यार मैं अफ्तारी में नहीं आ सकता। लेकिन इसकी वजह असल ये है कि अगर आप नमाज के लिए नहीं गए तो अपने अंदर झांकें कि आपसे कौन सी गलती हुई है कि रब्बे कायनात पसंद ही नहीं करते आपके उनके दरबार में। आपसे कौन सी गलती हुई है, आपसे कौन सी गुस्ताखी हुई है कि आप मार्च करने के लिए फलस्तीनियों के लिए 2 नारे लगाने के लिए नहीं आए। आपसे कौन सी ऐसी चीज हुई है कि आप पाकिस्तान के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते। छोड़ दें पाकिस्तानियत, छोड़ दें फलस्तीनियत, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए इकट्ठे हो जाएं, दुनिया हमारे कदमों में हो।